Hey folks, do you know that most Western countries, especially one ruled by colonial Britain, are heavily influenced by racism? Yes, a major problem in the West. We have studied the US civil rights movement during the 60s, the fight against apartheid in South Africa by Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela, respectively. You have also read When Great Trees Fall and I Know Why the Caged Bird Sings. These were heavily influenced by anti-racism encore. So, ISC has introduced us to one more chapter which seems satirical, ironic and bitterly humorous. Telephone Conversation by Vol Soyinka. The poem is set up in Britain, especially London, and shows the bizarre condition of England during that time. The context of this poem is social isolation of an African man in a prejudiced society of England. तो अब उनके बारे में बात करते हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी। वोल सोयिंका नाइजीरिया के थे, कॉलोनियल रूल को देखते हुए आगे बढ़े, जैसे हमारी इंडिया ने फेस किया। एक मौका मिला इंग्लैंड जाने का, वहाँ पढ़ने का और पढ़ाई किए। देन ही मेड इंग्लैंड हिज वर्क प्लेस एंड एट दैट पॉइंट ही माइट हैव फेस्ड रेसिज्म एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव गॉट दिस पोएम। ह्यूमर है इस पोएम में, ये सीरियस अप्रोच के साथ नहीं लिखी गई है। इसका डिक्शन उन पोएम्स की तरह नहीं है जहां सब कुछ बहुत सीरियसली कह या लिख दिया जाता है। द प्राइस सीम्ड रीजनेबल। The price seemed reasonable. It means that England was not affordable at that time, yet that place was. It means Vol Soyinka, who has came from Nigeria, and he was having, you could say that at that time he might be facing a little bit of trouble in terms of making money. So that is why he is looking for kind of an affordable place. सो द फर्स्ट लाइन, जो पहली लाइन है, वो इसीलिए इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से दर्शा रही है कि द प्राइस सीम्ड रीजनेबल एंड लोकेशन इनडिफरेंट एंड द लोकेशन वॉज ऑल्सो फाइन। सो इंग्लैंड काफ़ी बड़ा एरिया है एंड कंसिडर्ड टू बी अ पॉश और यू कुड से अ वेल्दी एरिया। सो उस समय के लोग, वहाँ के लोग, तो कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राइटर ये चीज़ बोलता है कि दैट प्राइस सीम्ड रीजनेबल, लोकेशन इनडिफरेंट, द लैंड लेडी सो शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस। सो अब सोचो, एक ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पे केवल आप रह रहे हो और वहाँ पे लैंड लेडी नहीं है, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लैंड लेडी साथ में नहीं रह रही है, कोई भी वहाँ पे नहीं रह रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी, इट्स अ प्लस पॉइंट। सो राइटर विल गेट फ्रीडम। नथिंग रिमेन्ड बट सेल्फ कन्फेशन। नाउ देयर इट मीन्स दैट एवरी फॉर्मेलिटी हैज़ बीन डन ऑफ हेलो, हे, everything seems to be really cool off between those two. It means that as a tenant and as a landlady, whatever they have had a conversation, they have it. Now, the writer wants to confess something. He says, "Madam, I want." It means that it was like a warning to landlady that the thing which I am about to say might disturb you. So, madam, I want. I hate a wasted journey. I am African. It means that now from here on you'll get that really the Africans, or you could say that the African person, they faced a lot of things, and this line is suggesting that I hate a wasted journey,
I am African. It means that I really don't want to waste a trip over there. It means that I do not want to go over there and just got nothing. So that is why I'm clearing this off at this particular instance, that I am an African. And if you are going to, or if you have problem with that, then you can tell me now. Silence. Silenced transmission of pressurized good breeding. It means now there was silence on the phone, and in that silence the writer could hear the tension between the landlady's prejudice and her manners. It means that जैसे ही लैंडलेडी ने सुना कि एक अफ्रीकन है, उनका एक जो सोचने का नज़रिया था, या कह सकते हो कि एक इंसान ने सुना अफ्रीकन, और हमारे दिमाग में अचानक से ऑल दोज ब्लैक पीपल दे केम, तो जैसे ही उन्होंने सुना अफ्रीकन, अब उनके दिमाग में भी एकदम से कौन आए होंगे? सारे अफ्रीकन लोग आए होंगे। कलर आया होगा, डिफरेंट कलर्स आए होंगे, उनका मैनरिज्म आया होगा, और इस चीज को बहुत ज्यादा वो पोर्ट्रे करना भी नहीं चाह रही हैं। शी इज इन अ डायलेमा, शी इज इन अ डायलेमा, वो एक डायलेमा में बैठ फंसी हुई हैं कि अगर वो अब इंसान को कैसे बोले यार कि अफ्रीकन कैसे, कौन, तो शी इज इन डायलेमा. And that is why here it is written pressurized good breeding. It means that she wants to show culture, but it was pressurized. Culture तो show कर रही हैं वो, but pressurized है. Voice when it came lipstick coated, long gold rolled, cigarette holder pipped. Now अब वो बोलती हैं, एंड जब वो बोलती है ना तो उनके वॉइस से एक लेविशनेस, एक इस तरह का सेंस देखने को मिलता है कि दैट यस शी इज फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली. एटलीस्ट ये राइटर को लग रहा है, राइटर को ये लग रहा है कि दैट द पर्सन विच is sitting on the other side of the phone might be from a very privileged family. और वो उनके मैनरिज्म से लगा, यानी कि जो जिस तरीके से उन्होंने अपने वर्ड्स को निकाला उस तरीके से उनको समझ में आया. वो वर्ड्स कैसे थे? दे वर लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड. नाउ व्हाई गोल्ड रोल्ड? इट मीन्स दैट इट इज शोइंग द लैविशनेस ऑफ दैट पर्सन, और यू कुड से ऑफ इंग्लैंड. Caught I was foully, and that is how was in a terrible position. Okay, he got caught, वो पकड़े गए. Now the next paragraph deals with how dark, and they all are capital. How dark? I had not misheard. He got surprised with it. How dark? After listening or after hearing African, that lady, she has said how dark. You are directly saying to an African person that how dark you are. A direct racial slur to that person. There is this word slur. So she made a comment. Racial slur. So how dark? I had not misheard. Are you light or very dark? It means that are you of Caucasian
it's kind of skin. You could say that olive skin, just like us, or you could say we Indians have. तो उस तरह का या तो स्किन के बारे में वो बोल रही थी, ठीक है, या फिर वो बोल रही थी, मतलब वो डार्कनेस को भी एक आप बोल सकते हो ना कि दैट शी इज लुकिंग डार्कनेस इनटू अ वे फ्रॉम वेयर शी कुड फाइंड आउट, वेयर शी इज फाइंडिंग इट आउट इन एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. कितना काला है, कौन कितने डार्क हो. तो ये चीज़ें इट्स नॉट गुड. ऑफ वेरी डार्क, बटन बी, बटन ए. तो बटन बी और बटन ए का बहुत प्यारा रेफरेंस है. बटन बी और बटन ए का बहुत अच्छा प्यारा रेफरेंस है. एक्चुअली होता क्या था कि इंग्लैंड में जैसे यूजर्स जो हुआ करते थे वो कॉइन इंसर्ट करते थे, ठीक है, नंबर डायल करते थे, कॉइन इंसर्ट करते थे. अगर वो आंसर हो जाता था तो वो बटन ए प्रेस कर देते थे. तो उनका जो सिक्का होता था, जो कॉइन होता था जिससे कॉल करी गई है, ये यूजुअली अपने इंडिया में भी 2001 और 2 के आसपास तक इस तरीके के फ़ोन्स आया करते थे. दे वर द पब्लिक फ़ोन्स, पब्लिक बूथ हुआ करते थे, छोटे छोटे येलो कलर के, अपने यहाँ पे येलो कलर के बॉक्सेस हुआ करते थे. रेड भी थे बट येलो कलर मैंने मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो अपने छोटे में देख रखे हैं तो मैंने येलो कलर के देख रखे हैं. तो हम लोगों के यहाँ पे खैर ये बटन ए और बटन बी वाला नहीं सिस्टम था. सीधा कॉइन डालो, कॉल मिलाओ एंड देन वी कैन हैव आवर कॉन्वर्सेशन. तो बटन ए में क्या होता था कि जैसे आपने आंसर किया तो अगर कॉल लग गई है तो यू सिंपली जस्ट हैव टू प्रेस बटन ए. तो बटन ए आपने दबा दिया और उसकी वजह से क्या हुआ, कॉइन जो होता था वो नीचे फ्लिप करके चला जाता था. इट मीन्स दैट नाउ इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट. और अगर कॉल फेल होती थी और वो आंसर नहीं होती थी तो आपको बटन बी दबा देना पड़ता था, तो आपका कॉइन वापस रिटर्न होकर के आ जाता था. ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस इतना सिंपल प्रोसीजर है ये. तो इसीलिए बोला है बटन बी बटन ए, अ स्टेंच ऑफ रेंसिड ब्रेथ. नाउ रेंसिड ब्रेथ मीन्स अनप्लेजेंट. मतलब कितना बुरी बात बोली गई ना ये. एक ऐसा रेशियल स्लर जहां पे आप पूछ रहे हो उस व्यक्ति से, उस पर्सन से, तुम कितने ब्लैक हो, हाउ ब्लैक यू आर. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर इस चीज को देखा जाए तो शायद ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है. मुझे जो लगता है कि अगर आप इसको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखेंगे सो इट्स नॉट गुड. सो यस, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को भी इस चीज पे लिख सकते हो. व्हेनेवर यू आर फ्रेमिंग एन आंसर तो आप वहां पे ये चीज लिख सकते हो. यू कैन राइट इट. नाउ रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर्ड omnibus, squelching tar. A very, very beautiful line. Red booth, colonial. Red pillar box. So red booth ये क्या चीज शो कर रहा है, कॉलोनियलिज्म को. यानी कि राइटर जब अपने आसपास की सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं कि यार मेरे सामने देयर इज़ एन इंग्लिश पर्सन, या मेरे इधर पे कोई भी चीज़ जो खड़ी हुई है इट बिलोंग्स टू इंग्लिश कम्युनिटी. इवन छोटी से छोटी चीज़, उन्होंने वो जो कॉइन डाला वो किसका है, ब्रिटेन का है. वो जिस बूथ पे खड़े हैं वो किसके पास है, वो ब्रिटेन के पास है, वो ब्रिटेन का है. रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर्ड omnibus, एवरीथिंग देयर, और यू कुड से हिज साइट, जो उसकी नज़र जहां तक कहीं पे भी पहुंच रही है, जिस भी जगह तक पहुंच रही है, उस जगह तक उनको सिर्फ इंग्लैंड दिखाई दे रहा है, उनको वाइट पीपल दिखाई दे रहे हैं, उनको अपने जैसा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है. इसीलिए वो अपने आप को कैसा पाते हैं, स्क्वेल्चिंग टार. टार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ये ब्लैक कलर है. और स्क्वेल्चिंग यानी ऐसा जिस चीज़ को दबाया जा रहा हो, विच इज़ बीइंग पुश्ड. इट वॉज रियल, शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस, सरेंडर, पुश्ड डम्फाउंडमेंट टू बैक सिंप्लीफिकेशन. तो अब उनके दिमाग में देखो, आपने किसी को कॉल किया और उसके बाद एकदम से चीज़ें साइलेंस्ड हो जाती हैं. क्या ये अच्छा है? नहीं. अच्छा, उन्होंने एक ऐसी बात बोली, हाउ डार्क. तो मुझे लगता है कि जो राइटर
एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइटर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सामने वाला शायद मुझे कुछ अपनी तरफ से, मतलब भाई आपने किसी को डायरेक्टली इस तरीके से रेशियली आपने किसी का मजाक उड़ाया, तो एटलीस्ट एज अ सिंपल कर्टसी आप उसको सॉरी बोल सकते थे। राइटर ये चीज़ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं शायद, मे बी, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा लेट हो गया है कि दैट इट डजंट सीम्स टू बी पोलाइट। इट डजंट सीम टू बी पोलाइट, अब वो पोलाइट नहीं दिख रहा है। तो अब क्या हुआ, राइटर को ही अपने आप को क्या करना पड़ा कि चलो ठीक है, अब नाउ आई वुड बी द वन हु वुड गो फॉर नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन। सो to beg simplification, considerate she was, varying the emphasis. Now she again said, "What? Are you dark or very light?" Revelation came. Okay, it means that it finally made sense that she again started asking that are you dark or very light? यानी एक black people से, एक black person से it has been asked that what is the tone of your color? Then what writer replies? He says, "You mean like plain or milk chocolate?" Quite sarcastic. You mean like plain or milk chocolate? It means that it is brown or it's a milk chocolate, like plain or milk chocolate. Her accent was clinical, crushing in its light. Okay, so her accent was clinical, crushing in its light impersonality. So whatever she has said, it doesn't seem to be very appropriate for a black person or for a person who is colored. It doesn't seems to be. Okay, so her accent was clinical, crushing in its light. It means that whatever she has asked, she is just detached from it. You getting me? It means that she is not thinking of that whatever she has asked. जो भी उसने पूछा, जो भी उसने बात किया, उसको उसके बारे में आइडिया तक नहीं था, वो सोच भी नहीं पा रहा था। और वो इस चीज को सोच भी नहीं पा रहा था कि ये अचानक से इन्होंने कैसे पूछ लिया। लेकिन बट राइटर के पास अपने आप में एक टैक्टिक थी, तो उसने क्या बोला, रैपिडली वेवलेंथ एडजस्टेड, ही एडजस्टेड द वेवलेंथ। आई चोज वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। इट मीन्स दैट माई कलर इज वेस्ट अफ्रीकन। ओके, सो शी वुडंट गेट एनी आइडिया अबाउट इट। यानी कि जो सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है या सेंट्रल अफ्रीका के अंदर जो कंट्रीज पड़ती हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉन्गो हो गया, DRC, ठीक है, तो ये सारी जो कंट्रीज होती हैं, यहाँ के पीपल बहुत ज़्यादा डार्क स्किन है। लेकिन अगर आप वेस्ट अफ्रीका के अंदर जाओगे, जैसे मोरक्को वगैरह, ठीक है, तो मोरक्को हो गया, या फिर आप इधर बेनिन वगैरह में आ जाएंगे, तो यहाँ पे यूजुअली थोड़ा सा उन कलर्स से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लाइट हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने ये यूज किया वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। एंड एज एन आफ्टर थॉट डाउन इन माई पासपोर्ट, या फिर ही इज थिंकिंग कि आफ्टर गिविंग इट अ लिटिल बिट ऑफ थॉट, ही जस्ट गॉट इट इनटू हिज माइंड दैट इज पासपोर्ट। तो उनका जो पासपोर्ट था, क्योंकि उस समय पे क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज हुआ करती थी, तो उसको जब यूजुअली जब उसमें कलर का एडिटिंग किया जाता था, या ये कह सकते हो कि उसके अंदर जब ब्रशिंग करी जाती थी, उसके अंदर जब कलरिंग करी जाती थी, तो वो यूजुअली ब्लैक और वाइट कलर का ही होता था। तो अब जो जिनका स्किन जो होता था थोड़ा सा हल्का सा लाइट कलर में होता था, ठीक है, ज़्यादा डार्क नहीं होता था, लाइट कलर होता था, तो उनका फेस ये कह सकते हो कि दैट इट गेट्स अ लिटिल शाइनी, वो हल्का सा शाइनी होता है। दैट इज वाई ही हैज़ यूज्ड वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। And as an afterthought, down in my passport, silence for spectroscopic flight of fancy till truthfulness changed her accent. And now there was this silence again, and she has thought of every colors which she can imagine in her mind. सारे colors उसने सोच लिए होंगे, dark color, light color, whatever color there are.
ओके, तो उनके दिमाग में जो भी कलर यहाँ पे राइटर ने रेफर किया, ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, तो उसके अंदर जितने भी कलर फॉल हो रहे होंगे, जितने भी कलर आ रहे होंगे, वो सारे के सारे कलर्स इनके दिमाग में, लेडी के दिमाग में, दैट वाइट लेडी, उनके दिमाग में आ चुके थे। अब इसके बाद अचानक से हर फीलिंग्स दे गॉट अ लिटिल, इट मीन्स अ फ्लाइट ऑफ फैंसी टिल ट्रूथफुलनेस क्लैंग्ड हर एक्सेंट। तो अब सो नाउ हार्ड ऑन द माउथ पीस, what's that? Conceding. Don't know what that is. So अब उनके दिमाग में एक चीज़ जो दिमाग में उनके, मतलब नाउ शी इज़ लाइक ना, एक उनको ऐसा धप्पा पड़ गया कि यार इसको पता है, चीज़ें समझ में आ गई हैं कि दैट आई एम बीइंग कॉन्डिसेंडिंग फॉर दिस पर्सन. सो हार्ड ऑन द माउथ पीस, ओके, हार्शली ऑन द फोन, शी सेड व्हाट्स दैट, कंसीडिंग, एडमिटिंग, डोंट नो व्हाट दैट इज. उनको पता भी नहीं है कि ये किस बारे में बात हो रही है. ठीक है, मतलब कह सकते हो कि एक तरीके से राइटर ने उनके जो दिमाग में था, जो बातें उनके दिमाग में थी, वो साफ साफ उन्होंने निकाल ली. तो उन्होंने कहा लाइक ब्रूनेट, अ ब्रूनेट कलर इज ब्लैक, प्योर ब्लैक. दैट्स डार्क इजंट इट, नॉट ऑल टुगेदर. बोली ये तो बहुत ही ज़्यादा डार्क है. सोचो, थिंक अबाउट दैट पर्सन, दैट वाइट लेडी, तो बहुत ही ज़्यादा डार्क है. नॉट ऑल टुगेदर. फेशियली आई एम ब्रूनेट, बट मैडम यू सी द रेस्ट ऑफ मी. मतलब अगर आप देखोगे, अगर फेशियली मुझे देखोगे तो आई एम ब्रूनेट, आई एम ब्लैक कलर, आई एम इन ब्लैक कलर, बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी. palm of my hand, soles of my feet are a peroxide blonde. It means that they are of, so my rest of the color is peroxide blonde. Friction caused foolishly, madam, by sitting down has turned my bottom raven black. It means that whenever I sit down, just because of the friction, okay, friction की वजह से क्या हुआ है, my bottom, okay, the place or you could say that where I sit, it has turned black, raven black. One moment, madam, sensing her receiver rearing on the thunderclap. तो अभी उनके हाथ में जो रिसीवर था वो भी अब जाने वाला था, क्योंकि इतनी बेइज्जती हो चुकी थी उस वाइट लेडी की. इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी कि वो अपने फ़ोन का रिसीवर जो था वो रख. सो अबाउट माई ईयर्स मैडम, आई प्लीडेड, वुडंट यू रादर सी फॉर योर सेल्फ. इट मीन्स दैट यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि वो फ़ोन अपना रखने वाली थी, तो राइटर को माइट भी, ठीक है, वो एक तरीके से माइट भी क्या बोलेंगे, बट ये बोल सकते हैं कि हाँ, राइटर उनको एक तरीके से बहुत प्यारा मॉक करना चाहते थे. सो एक इस तरीके से ये पोयम शुरू होती है, जिस जगह पे अगर आप देखोगे तो शायद हो सकता है कि जो लैंड लेडी का साइलेंस था एट द बिगिनिंग, वही आखिरी में उनकी बेइज्जती का कारण बनता है. थैंक यू सो मच. विद दैट बीइंग सेड, Hello. Madam, I hate a wasted journey. I am African.